بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج کوانٹٹی تھیوری آف منی، نظریہ مقدار زر۔ تو اسٹوڈنٹ، نظریہ مقدار زر یا کوانٹٹی تھیوری آف منی اکنامکس اور بینکنگ کا ایک اہم ایشو ہے۔ یہ ہے کیا؟ دراصل اگر آپ ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات بڑی آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا اور آج کے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم کریٹیکلی چیک کریں تو آج کا انسان جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے مطمئن نہیں ہے، جبکہ ماضی کا انسان جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا تھا بڑی سیٹسفیکٹری لائف گزار رہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا تھا وہ زندگی میں اطمینان سے تھے، اور آج جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے جسے آئرونگ فشر نے ہمیں متعارف کروایا تھا۔ آئرونگ فشر جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی وقت دنیا میں کسی کنٹری میں کسی قوم کے پاس پرنٹنگ آف کرنسی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے دو باتیں وجود میں آئیں گی۔ اگر کسی ملک میں کرنسی بہت زیادہ پرنٹ ہو جائے تو دو باتیں جو وجود میں آئیں گی وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ملک میں جو پرائسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ویلیو آف منی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں فشر کی اس تھیوری کا بنیادی حصہ تھا، اور اسی بنیادی حصے کو لے کر آگے انہوں نے ہمیں یہ باور کروایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کسی ملک میں کرنسی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ کرنسی کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس کے مقابلے میں چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ دو پلر ہیں ہماری اس تھیوری کے۔ پیسہ زیادہ ہو جائے گا، قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، پیسہ تھوڑا ہوگا، قیمتیں تھوڑی ہوں گی۔ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اس پیسے کی ویلیو اتنی ہی گرتی چلی جائے گی، اور جتنا پیسہ کم ہوگا اس کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہاں ویلیو سے مراد پرچیزنگ پاور ہے، اس کی قوت خرید ہے۔ پیسے کی قوت خرید کم ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے فشر نے ایک مساوات کا سہارا لیا جس میں بنیادی طور پر آپ کے پاس 6 ایلیمنٹس ہیں، 6 ویریبلز ہیں۔ P stands for price, M stands for real money, V stands for velocity of real money, M stands for credit money، اور یہ V velocity of credit money، T stands for transaction۔ سب سے پہلے تو ہم ان 6 ویریبلز کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر طور پر پرائس آپ جانتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس منی۔ یہاں اسٹوڈنٹ منی 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، ایک ہے ریئل منی، ایک ہے کریڈٹ منی۔ میں ریئل منی اور کریڈٹ منی پر انشاءاللہ کہیں پھر سیر حاصل بحث کروں گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں، وہ پیسہ جسے ہر آدمی جانتا ہے، پہچانتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ ریئل منی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس جتنے بھی نوٹ ہیں، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 روپے کا یا 5000 روپے کا، یہ سارے کے سارے نوٹ جو ہیں ہمارے ہر آدمی پہچانتا ہے، اور اس کو پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسے ہم ریئل منی کے زمرے میں لے کے آئیں گے۔ اور کریڈٹ منی وہ منی ہوتی ہے جسے عام آدمی نہیں پہچانتا ہے، تو دولت لیکن عام آدمی نہیں پہچانتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پرائز بانڈ، اس کو ہر آدمی تو نہیں پہچانتا۔ اسی طریقے سے چیکس ہر آدمی تو نہیں پہچانتا، ہر آدمی اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا۔ تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ملک میں جدھر ریئل منی کام کر رہی ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے آپ کی کریڈٹ منی بھی سرکولیٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، فشر کی اس مساوات کے مطابق کسی ملک میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی وقت منی 500 ہے، 500 ہمارے پاس دولت ہے، مجموعی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں 500 ریئل منی ہے اور ملک میں 500 ہی کریڈٹ منی ہے، اور ویلوسٹی کی ہم ویلیو جو ہے وہ 5 فرض کر لیتے ہیں دونوں کے لیے، اور 100 ٹرانزیکشن فرض کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں 5، ان ویریبلز کو اس مساوات میں ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی پرائسز آ جائیں گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ اس مساوات کی مدد سے کسی چیز کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔
एम स्टैंड फॉर मनी। हमने फ़र्ज़ किया है कि मुल्क में 500 नोट हैं टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। वेलोसिटी हमने 5 फ़र्ज़ की हुई है और क्रेडिट मनी भी हमने 5 फ़र्ज़ की हुई है और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी है। अगर आप इनको हल करते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की प्राइसेस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500, ये जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और अपॉन 100। इसको अगर आप दोनों को जमा करते हैं तो ये है हमारे पास 5000 अपॉन 100। तो उस वक्त प्राइस जो है किसी चीज़ की वो 50 रुपये है। स्टूडेंट यहाँ तक आमतौर पर स्टूडेंट बात को समझ नहीं पाता कि कहना क्या चाह रहा है ये। इस मुसावात के मुताबिक जब मुल्क में नोटों की तादाद 500 है, नोट की वेलोसिटी 5 है, क्रेडिट मनी 500 है, क्रेडिट मनी की वेलोसिटी 5 है और ट्रांजैक्शन जो है वो 100 है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मुल्क में वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की तरफ इशारा होता है ये। तो इस मुसावात को हम इन वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को एडजस्ट करते हुए किसी चीज़ की कीमत जो है वो 50 रुपये मुकर्रर करते हैं। अब जब मुल्क में नोटों की तादाद 500 है तो उस वक्त किसी चीज़ की कीमत जो है वो 50 रुपये है। मिसाल के तौर पर मेरे पास मार्कर, हम अगर इसकी वैल्यू को देखते हैं तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वैल्यू 50 रुपये इस मार्कर की है। अगर अब यहाँ से फीचर हमें बताना शुरू करते हैं, अगर मुल्क में 500 है नोट तो ये मार्कर 50 रुपये का है। वो कहते हैं कि अगर नोटों की तादाद बढ़ जाए, नोटों की तादाद 500 की बजाय 1000 हो जाए तो हमारा मार्कर 50 का नहीं रहेगा बल्कि ये महंगा हो जाएगा। और अगर नोटों की तादाद हम कम कर देते हैं तो हमारा ये मार्कर 50 से कम कीमत का हो जाएगा। गोया कि नोट बढ़ जाएंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, नोट कम हो जाएंगे इसकी प्राइस कम हो जाएगी। आइए हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको देखते हैं, इसी मुसावात को हम दोबारा लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट 100 नहीं है, टी है। बाद में हमने इसको 100 जो है, पहले तो हमें टी ही लिखना है, बाद में इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। तो हम कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में 500 नोट नहीं है बल्कि 1000 नोटों की तादाद में इजाफा हो गया। जैसे ही नोटों की तादाद में इजाफा हो गया तो आप देखेंगे कि प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। वो मार्कर, वो चीज़ जो 50 रुपए की थी, नोटों की तादाद बढ़ने से 50 की नहीं रहेगी। आइए हम स्टूडेंट देखते हैं। तो हमने यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी 500 की जगह पर 1000 कर दी, तो इसका मतलब है कि एम की जगह पर आप 1000 लिखेंगे। वेलोसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो वेलोसिटी वैसे ही रहेगी। क्रेडिट मनी जो है उसको भी हम चेंज कर देंगे और 1000 कर देंगे। वेलोसिटी इसकी भी चेंज नहीं करेंगे और ट्रांजैक्शन जो है इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 अपॉन 100, वही इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 अपॉन 100। तो अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास पी की वैल्यू जो है वो 100 आई। जब मुल्क में नोट 500 थे तो उस चीज़ की कीमत जो है वो 50 रुपीज़ थी, वो जो भी चीज़ थी। जब नोटों की तादाद में इजाफा हुआ, 500 की बजाय 1000 हो गए नोट, तो हम देख रहे हैं कि वही मार्कर, वही चीज़ जो 50 रुपए की थी, अब वो 100 की हो गई। गोया कि जब हमारे पास 500 रुपये थे, करेंसी हमारे पास 500 थी, तो इसकी कीमत जो है वो 50 रुपये है। और अगर नोटों की तादाद में इजाफा हो गया तो इसकी कीमत जो है वो भी ज़्यादा हो गई। और अगर किसी वक्त नोटों की तादाद 500 से कम कर दें तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि चीज़ों की वैल्यू भी कम हो जाएगी। आइए इसी मुसावात को हम दोबारा देखते हैं। हमारे पास ये मुसावात दोबारा लिखने से अब हम m की जगह पर यहाँ हमने 500 रखा जो किसी चीज़ की कीमत 50 रुपये है, यहाँ हमने 1000 रखा तो कीमत ज़्यादा हो गई। अब हम 250 रखेंगे जो कि कम वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि यहाँ चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। हम यहाँ 250 रखेंगे, इसको भी हम 250 ही फ़र्ज़ कर लेते हैं, जबकि वेलोसिटी हम चेंज नहीं करते, ट्रांजैक्शन को भी चेंज नहीं करते। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1250, इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये भी हमारे पास 1250 अपॉन 100। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन, अगर आप देखें गौर से स्टूडेंट तो चीज़ों की कीमतें जो है वो कम हो गई। जब हमारे पास 500 रुपये थे तो ये मार्कर 50 रुपये का था। पैसे हमारे पास ज़्यादा हो गए, मुल्क में प्रिंटिंग करेंसी ज़्यादा कर दी हमने, तो मार्कर की वैल्यू, मार्कर की जो प्राइस है वो बढ़ गई। अगर करेंसी कम कर दी तो हमने देखा कि मार्कर की कीमत भी कम होगी।
पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैल्यू आपकी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। पैसे कम होते चले जा रही हैं तो प्राइसेस कम होती चली जा रही हैं। स्टूडेंट याद रखिए, क्या आप नहीं जानते कि पुराने ज़माने के लोगों के पास पैसा थोड़ा था लेकिन चीज़ों की कीमतें भी तो थोड़ी थी ना। आज हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि चीज़ों की कीमतें भी ज़्यादा हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ज़माने में लोगों के पास पैसा थोड़ा था लेकिन उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी? आज हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने ज़माने में जिस आदमी के पास 10 रुपये होते थे वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता था। आज 10 रुपये में क्या खरीद सकते हैं? आप जानते हैं पुराने ज़माने में जिसके पास 100 रुपये होता था वो अमीर आदमी समझा जाता था, और आज एक 100 रुपये में क्या खरीद सकते हैं आप जानते हैं? इसका मतलब है कि पुराने ज़माने का 100 रुपये ज़्यादा ताकतवर होता था, पुराने ज़माने के 100 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होती थी। आज के 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है या बहुत ही कम है। इसी तरीके से पुराने ज़माने में लोगों के पास पैसा तो थोड़ा था लेकिन चीज़ें भी सस्ती थी। आज हमारे पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चीज़ें भी तो बहुत महंगी हैं। तो आयरविंग फिशर की इस मुसावात से, इस थ्योरी से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर पैसा कम होगा तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी। इसका मतलब है कि 25 रुपये इतनी वैल्यू रखते थे कि मार्कर खरीद सकते थे आप। जैसे ही हमारे पास पैसा ज़्यादा हुआ मार्कर की कीमत ज़्यादा हो गई, पैसा और ज़्यादा हुआ मार्कर की कीमत और ज़्यादा हो गई। पैसा ज़्यादा होता चला जा रहा है, मार्कर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पैसा कम होगा तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी, और जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो दरअसल अंडरग्राउंड हम यूँ समझते हैं, और है भी यही, कि जब चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो दरअसल हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी जो चीज़ें पहले ख़रीद लेती थी, हमारा वो नोट जो पहले किसी चीज़ को ख़रीदने के काबिल था, अब हमारा वो नोट उसी चीज़ को ख़रीदने के काबिल ना रहा, बल्कि उसके साथ एक और नोट लगाना पड़ेगा हमें, तब जाके आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे। पहले एक नोट से ये ख़रीदा जाता था, अब 2 नोटों से ये चीज़ ख़रीदी जाएगी, फिर 3 नोटों से, फिर 4 नोटों से, फिर 5 नोटों से। तो जितने ज़्यादा नोट पे करना पड़ेंगे उतनी ही उस नोट की वैल्यू हम कम समझते हैं, कम होती है, परचेजिंग पावर उसकी कम होती चली जा रही होती है। तो आयरविंग फिशर की ये थ्योरी थी हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। हमारे अंग्रेज़ी की वीडियोस भी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मिक्रो और बैंकिंग की वीडियोस आजकल हमारी जो है वो प्रोग्रेस में हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।